Okay, today we'll continue with classification of organic compound. Today we'll continue with the classification of organic compound. In that, here I will have a serial number, class of compound, functional group, general formula, and example. Serial number, class of compound, functional functional group, general formula, and example. We'll have the next serial number. Already we have done in the last lecture. We have done about alkane, alkene, alkyne, alkyl halide, alkyl cyanide, and nitroalkane. Till here we have done in the last lecture. Okay. Today we'll start with the 7th one, that is alcohols. The next class of the organic compound is alcohol, and in alcohol the functional group is dash OH. Means we can call the organic compound as the alcohol if they contain dash OH group, and this dash OH group is called as hydroxyl. It is called as a hydroxyl group. It is called as a hydroxyl group, and general formula, this OH will attach to R. This OH will attach to ROH, and we know that R is alkyl group. Alkyl group can be methyl. What is methyl formula? Methyl formula is CH3OH. So I'll just write down R as CH3 and then OH, and CH3OH is called as methyl alcohol. Means if our OH attached to R, then it is called as a methyl alcohol, COH, attached to CH3, so methyl alcohol. So here, if the organic compound contains the dash OH group, it is called as a hydroxyl. And this type of the organic compound are called as alcohol, where OH is attached to R. R is called as a alkyl group. Okay, and then OH attached to methyl group, so methyl alcohol. Okay, methyl alcohol. And if suppose we have the OH attached to C2H5, then C2H5 is called as a ethyl alcohol. It is called as a ethyl alcohol. Okay, we'll go for the next. Seven, 8. That is the next class of organic compound is phenols. Phenols. Now in phenol also we get the dash OH group. Okay, 1 minute. In phenol also we get dash OH group. Now see, in alcohol also we are having the OH group. Phenol also we are having the OH group. But this OH group is called as a
phenolic. This OH group is called as a phenolic. And when we can call phenol is if this OH is attached to AR. AR means what? Aromatic. Aromatic means benzene ring. मतलब अगर हमारा OH अटैच करेगा अल्काइल ग्रुप को, मिथाइल इथाइल ग्रुप, एलिफेटिक ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड एज अ अल्कोहल. लेकिन अगर हमारा OH अटैच करेगा बेंजीन रिंग को, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग को अटैच करेगा, देन इट इज कॉल्ड एज अ फिनॉल. See, suppose benzene, what is benzene formula? C6H6. C6H6, but one of the hydrogen atom is replaced by OH, and so it is called as the phenol. It is called as the phenol. See, don't get confused between these two examples. दोनों जगह फंक्शनल ग्रुप सेम, दोनों जगह फंक्शनल ग्रुप सेम है. यहाँ पे भी OH आ रहा है, यहाँ पे भी OH आ रहा है, लेकिन डिफरेंस देखो क्या है. OH अटैच टू R. R मतलब अल्काइल, एलिफेटिक, ओपन चेन स्ट्रक्चर. और यहाँ पे AR. AR मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग. तो अगर हमारा OH अटैच करेगा अल्काइल ग्रुप को, देन वी कॉल देम एज अल्कोहल. अल्कोहल. अगर हमारा OH अटैच करेगा एरोमेटिक रिंग, देन वी कॉल देम एज अ फिनॉल. एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फिनॉल, C6H5OH, that is phenol. Okay. Next, the next class of the organic compound, that is amines. Amines. Now in amines, the functional group what we get is called as dash NH2, dash NH2, and this is called as amines. मतलब अगर हमारे कंपाउंड में dash NH2 ग्रुप रहेगा, तो उस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? अमाइंस बोलोगे. अमाइंस बोलोगे मतलब कौन सा ग्रुप रहेगा? dash NH2. जनरल फॉर्मूला क्या आएगा? इसके आगे R लिखना है, तो RNH2, RNH2, करेक्ट. और यहाँ पे R की जगह अल्काइल ग्रुप, कौन सा अल्काइल ग्रुप? मिथाइल या इथाइल, बट आई एम जस्ट टेकिंग मिथाइल. CH3NH2, which is called as a methyl amine. It is called as a methyl amine. See here again, just remember the first two column. When I am calling some compound as a amines, amines मतलब कौन सा ग्रुप होगा उनके अंदर? NH2, and NH2 group is called as a amines. NH2 group is called as a amines. जनरल फॉर्मूला क्या लिखोगे? RNH2 लिखोगे. R मतलब अल्काइल ग्रुप, and we know the alkyl group can be methyl or it can be ethyl. मैंने यहाँ पे लिखा CH3NH2. So methyl, CH3 group is called as methyl, and NH2 is called as the amine, methyl amine. The next class of the organic compound is ether. The next class of the organic compound is ether. Now, ether has a general formula, or ether has a functional group COC. मतलब सेंटर में O रहेगा, O के लेफ्ट साइड में कार्बन, एंड वी नो द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4. O के राइट साइड में कार्बन, एंड कार्बन वैलेंसी इज 4. ईथर. उनके लिए कोई स्पेशल नेम नहीं है, उनके फंक्शनल ग्रुप का नाम भी क्या रहेगा? ईथर. ईथर. सी हियर द नेक्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन आएगा? ईथर आएगा. और उनका फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा? देखो, COC. मतलब O विल बी एट द सेंटर. O के लेफ्ट साइड में आएगा एक कार्बन, और O के राइट साइड में भी एक आएगा कार्बन. ओके. अभी जनरल फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे आएगा O के लेफ्ट साइड में आएगा R, एंड O के राइट साइड में भी आएगा R. सो ये हमारा जनरल फॉर्मूला. मतलब बीच में रहेगा O, और O के लेफ्ट और राइट में क्या रहेगा? अल्काइल ग्रुप रहेंगे, अल्काइल ग्रुप. अब एग्जांपल देखो, O के लेफ्ट यहाँ पे आएगा कौन सा ग्रुप? CH3, मिथाइल. और यहाँ पे भी क्या लिखा मैंने? CH3 मिथाइल. करेक्ट. मिथाइल, मिथाइल. And so here this is also methyl, this is also methyl, 2 methyl together. So this can be called as
dimethyl ether. This can be called as dimethyl ether. देखो ये ether फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा, COC आएगा. जनरल फॉर्मूला क्या लिखोगे, ROR, मतलब O विल बी एट द सेंटर, O के लेफ्ट में भी R रहेगा, राइट में भी R रहेगा, एंड देन CH3OCH3, मतलब O सेंटर में रहेगा. तो अगर दो अल्काइल ग्रुप के बीच में O आ रहा है, देन दिस टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड एज अ ईथर. दे आर कॉल्ड एज अ ईथर. तो ये हमारे ईथर टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड. Next class of the organic compound is aldehyde. And the functional group is dash CH double bond O. Dash CH double bond O. Aldehyde. This group can be also written. This group ये जो ऐसा लिखा है, इसे और ऐसे भी आप लिख सकते हो, dash CHO ऐसा भी लिख सकते हो, but dash CH double bond O, or you can write what, dash CHO, and this group is called as formyl, or it can be called as aldehyde. This group can be called as formyl, or it can be called as aldehyde. See here, the next class of the organic compound is aldehyde. In aldehyde, which group will get to see? Dash कंपल्सरी फंक्शनल ग्रुप में क्या होना चाहिए, डैश होना चाहिए, बिकॉज ये डैश किसको अटैच करेगा, आर, या किसे अटैच करेगा, AR को. करेक्ट. तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डैश CH डबल बॉन्ड O डैश CHO, एंड दिस अल्डिहाइड ग्रुप, उसका नाम क्या रहेगा, फॉर्माइल, और इट कैन बी रिटन एज व्हाट, अल्डिहाइड. जनरल फॉर्मूला में क्या करना है, खाली डैश की जगह किसको अटैच करोगे, आर को. तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, R CH डबल बॉन्ड O, और अगर ऐसा लिख रहे हो तो R CHO. ये हमारा रहेगा जनरल फॉर्मूला अल्डिहाइड का. मतलब अगर कोई भी कंपाउंड में अगर आप CHO ग्रुप अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो वो कंपाउंड कौन सा रहेगा, अल्डिहाइड रहेगा. क्या रहेगा, अल्डिहाइड रहेगा. उस कंपाउंड को अल्डिहाइड बोलना है. अब एग्जाम्पल क्या करना है, आर के जगह लिखना है, मिथाइल. तो आर के जगह मैंने अगर मिथाइल लिखा तो CH3C डबल बॉन्ड OH. ओके. और उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, CH3CHO, और इसका नाम मिथाइल अल्डिहाइड नहीं है. इट इज नोन बाय अ वेरी कॉमन नेम कॉल्ड एज acetaldehyde. It is called as a acetaldehyde. acetaldehyde मतलब CH3CHO, मतलब यहाँ पे मिथाइल और ये CHO है, तो तुम बोलोगे इसे मिथाइल अल्डिहाइड बोल सकते हैं क्या, नहीं, इसका नाम ही ऐसा दिया हुआ है, acetaldehyde. ओके. तो अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH डबल बॉन्ड O ग्रुप अगर दिखाई दे रहा है, तो आप उससे क्या बोलोगे, अल्डिहाइड. अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, फॉर्माइल और अल्डिहाइड रहेगा. अगर इस फंक्शनल ग्रुप को R अटैच करोगे तो जनरल फॉर्मूला बनेगा, और R के जगह प्रॉपर अल्काइल ग्रुप अगर लिखोगे तो एग्जांपल बनेगा एसिटाल्डिहाइड. ओके. Okay, the next class of the organic compound is the ketone. Now ketone will write as what, C dash dash, and here we are having double bond. देखो कार्बन का वैलेंसी 4 है, कभी भी देखो आप कहीं पे भी देखो कार्बन का वैलेंसी 4 आ रहा है, यहाँ पे देखो कार्बन का वैलेंसी 1 2 3 4.
कार्बन वैलेंसी इज 4। यहाँ पे देखो इधर डैश डैश C डबल बॉन्ड O, कार्बन का वैलेंसी 1 2 3 4 और ऑक्सीजन का वैलेंसी 1 2, तो वैलेंसी करेक्ट है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज कीटो और ऑक्सो। ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम क्या लिखोगे आप? कीटो। कीटो मतलब कीटोन्स, और इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? ऑक्सो। अगर हमें जनरल फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला के लेफ्ट और यहाँ पे डैश है उधर क्या लिखना है? आर। यहाँ पे भी क्या लिखना है? आर। तो जनरल फॉर्मूला क्या आएगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो जनरल फॉर्मूला के डैश के यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? आर, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? आर। करेक्ट। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया। और जनरल फॉर्मूला में अगर मैं आर की जगह मिथाइल लिखूंगा तो फॉर्मूला क्या आएगा? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी आर की जगह मैं क्या लिखूंगा? CH3 मिथाइल ग्रुप। तो ध्यान में रखना, आर मतलब अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप हम लोग अभी कौन सा यूज करें? मिथाइल। एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज मिथाइल। सो इट इज कॉल्ड एज अ डाई मिथाइल। एंड देन C डबल बॉन्ड O ग्रुप, मतलब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कीटोन। बट इट इज वेरी कॉमनली known by other name, is also called as acetone. Is also called as what? Acetone. तो देखो, जिस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप रहेगा, ईथर में कंपेयर में, ईथर में क्या था? O के लेफ्ट और राइट साइड में कार्बन था, और यहाँ पे सेंटर में कार्बन है और अटैच टू O डबल बॉन्ड O है। तो कीटोन और ऑक्सो ग्रुप है। दोनों साइड में अगर आर आर लिखते हो तो क्या बनेगा? कीटोन। एंड देन हियर CH3 लिखोगे तो डाई मिथाइल कीटोन। दो मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल कीटोन, एंड द नेम ऑफ द कीटोन इज कॉल्ड एज व्हाट? एसीटोन। The next class is carboxylic acid. The next class of the organic compound is carboxylic acid. Carboxylic acid is dash C double bond O OH. इसे ऐसे लिख सकते हो, और you may also write as what? Dash COOH. So either you write down as what? Dash C double bond OOH, or you can write down as what? Dash COOH, and this group is called as carboxyl group. This group is called as carboxyl group. Carboxyl. What is carboxyl group? See, the name of the class of the organic compound is carboxylic acid. What is the carboxylic acid? Dash C double bond OOH, or dash C double bond OH. Carboxyl group. Carboxyl group. And then here we'll write what? Then this dash can be replaced by R. So here you get R C double bond O OH, or it can be also written as what? R COOH. दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, और either write, यहाँ पे R लिखो, R, और यहाँ पे R लिखो, तो सेम है। R C डबल बॉन्ड OOH, R COOH, और R के जगह एग्जाम्पल लिखना है। So I'll just write down the example of R as CH3, alkyl group. The alkyl group is CH3 C double bond O OH, ऐसे लिख सकते हो, और you can write the same way as what? CH3 COOH, and this is called as acetic acid. It is called as what? Acetic acid. इसका नाम है, मतलब तुम लोग मिथाइल एसिड लिख सकते हैं क्या? नहीं, इसका नाम ही है एसिटिक एसिड। देखो, मतलब नॉर्मली ये जो CH3 ग्रुप होता है, CH3CO ग्रुप, CH3CO ग्रुप को एसिटा बोलते हैं, CH3CO ग्रुप को एसिटा, और यहाँ पे भी CH3CO ग्रुप को एसिड, ACET।
तो यहाँ पे भी मतलब जिनके पास CH3CO, देखो CH3CO तो यहाँ पे एसिटा, एसिड, CH3CO तो एसिटा, CH3CO तो एसिटिक, आगे आ लगाएगा, करेक्ट। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलोगे, जिनके पास डैश COOH ग्रुप है, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा। डैश के पीछे क्या लगाओगे, आर लगाओगे, तो ये हमारा क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला बनेगा। और आर की जगह प्रॉपर अल्काइल ग्रुप लिखोगे तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा, एसिडिक एसिड बनेगा। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड। The next class of organic compound is esters. Next organic compound is esters. And in esters हमें क्या रहेगा, देखो डैश COO, और देखो यहाँ पे H था, इधर यहाँ पे H किसके जगह क्या मिलेगा, R मिलेगा, क्या मिलेगा, R। देखो यहाँ पे क्या था, डैश डैश C डबल बॉन्ड OH था, यहाँ पे क्या मिला, डैश C डबल बॉन्ड OR, मतलब अगर H के जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, R आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एस्टर बोलेंगे। द नेम ऑफ द ग्रुप इज व्हाट, एस्टर। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, डैश COOR and this group is called as a, this group is called as a ester group. This group is called as a ester group. Okay, dash C double bond OOR डैश COOR, दोनों में से कोई एक रखोगे तो भी चलेगा। देखो दोनों सेम है, यहाँ पे डैश COOH था, H is replaced by what, R, तो this is dash COOR, एस्टर ग्रुप। ना अभी यहाँ पे R, ये ऑलरेडी एक R आएगा, यहाँ पे दूसरा एक R लिखोगे, दूसरा एक R, तो अभी मैं ऐसा लिखूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक R है, और आई जस्ट राइट डाउन दिस R एज अ R डैश, इसका मैंने क्या लिखा, R डैश लिखा। तो यहाँ पे जो R आएगा वैसे लिखोगे R C डबल बॉन्ड OR डैश, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी, लेकिन दोनों अलग है, या दोनों सेम भी हो सकते हैं। और R COOR डैश, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप कौन सा, C डबल बॉन्ड OH था, यहाँ से H इज रिप्लेस बाय व्हाट, R, लेकिन R ऑलरेडी R एक R है, कॉमन R आ रहा है, तो ये हमारा एस्टर ग्रुप बनेगा COOR। और यहाँ पे डैश की जगह क्या रिप्लेस कर दे, R, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला बना। अभी एग्जांपल के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इधर अल्काइल ग्रुप लिखेंगे, अल्काइल ग्रुप, ये R लिखा मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H। देखो R यहाँ पे मैंने लिखा मिथाइल, ये अलग लिखा मैंने, इथाइल, दिस ग्रुप इज इथाइल। सेम मैं लिख सकता हूँ CH3 COO C2H पर, CH3 COO C2H पर। और जब मैं नाम लिखूंगा तो इसका नाम जो अल्काइल ग्रुप O के साथ है, जो अल्काइल ग्रुप O के साथ है उसका नाम पहले, तो ये कौन सा ग्रुप है मेरा, इथाइल, तो ये आएगा इथाइल, इथाइल एंड CH3COO is called as a acetate, CH3COO is called as a acetate। देखो इसका नाम कैसे लिखा मैं हम लोगों ने, जो ग्रुप लास्ट में है उसका नाम पहले लिखा, इथाइल, इथाइल एंड CH3COO is called as a acetate, इथाइल एसिटेट। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स है। ऑफ कोर्स मेनी मोर आर देयर, बट एटलीस्ट इतने फंक्शनल ग्रुप आप करो तो भी थोड़ा इजी रहेगा। ओके, so which are the functional group we have seen today? Today we have seen the functional group alcohol, मतलब कौन सा ग्रुप रहेगा, डैश OH। फिनॉल में भी रहेगा डैश OH, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा,
अल्कोहल में OH अटैच करेगा R को, अल्काइल ग्रुप को, और यहाँ पे OH अटैच करेगा बेंजीन ग्रुप। देन अमाइंस, अमाइंस में फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा, डैश NH2। तो अमाइंस, ईथर, मतलब सेंटर में O रहेगा, सेंटर में O रहेगा, और O के लेफ्ट और O के राइट में क्या रहेंगे, अल्काइल ग्रुप रहेंगे। O के लेफ्ट और राइट में अल्काइल ग्रुप रहेंगे। ईथर, अल्डिहाइड मतलब कौन सा ग्रुप आएगा, डैश C डबल बॉन्ड OH, जिससे हम डैश CHO भी बोल सकते हैं, और जनरल फॉर्म है अल्डिहाइड। कीटोन, देखो यहाँ पे डैश C डबल बॉन्ड हो और एक साइड में H था, यहाँ पे डैश C डबल बॉन्ड हो और दूसरे साइड में भी डैश है, तो ये हमारा कीटोन ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड, डैश C डबल बॉन्ड O डैश OH, या डैश COH लिख सकते हो। और एस्टर में क्या डिफरेंस है, ये जो लास्ट H है उसके जगह हमने क्या लिखा, R लिखा, लास्ट H के जगह क्या लिखा, R लिखा, तो ये हमारा बना एस्टर्स, ये हमारा बना एस्टर्स। ओके, तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। ऑफ कोर्स मेनी मोर आर देयर, बट वी विल डू दिस मेनी फंक्शनल ग्रुप। हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स वी डन, टोटल 14। और तुम्हें एग्जाम में आना चाहिए कि अगर मैंने बोला एस्टर या बोला एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए डैश C डबल बॉन्ड O डैश OH डैश COOH। ओके, the next heading will go for yes, we are going for the next heading, that is called as a homologous series. The next heading is homologous series. Now, what is homologous series here? What is homologous series? A series of organic compounds, each containing characteristic functional group, series of organic compound containing characteristic functional group and a successive member differ from each other in a molecule 1 minute, successive member differ from each other in a molecular formula by a CH2 group. CH2 group, and CH2 group is called as a
I'll explain this. By a CH2, that is methylene group is called homologous series. Okay, I'll explain now. What is homologous series? A series of organic compound. A series of organic compound containing characteristic functional group. Successive member, मतलब next two member differ from each other in a molecule by which unit CH2 group, that is called as a methylene group. CH2 is a formula and name is a methylene group, are called as a homologous series. I will take the example. Example 1. Suppose I take the general formula CN H2N plus 1 OH. I have taken the general formula CN H2N plus 1 OH. मतलब CnH2n plus 1 OH. तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे n इक्वल टू अगर 1 लिखा तो n इक्वल टू 1 क्या आएगा? C1 H 2 into 1 2 into 1 2 2 plus 1 3 तो CH3 और आगे क्या आएगा? OH. ये हमारा एग्जाम्पल है. अगर मैंने यहाँ पे n इक्वल टू 2 लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो C2 H 2 2 4 plus 1 तो C2H5 OH C2H5OH. और अगर मैं यहाँ पे n इक्वल टू 3 लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा? C3 2 3 6 plus 1 7 C3H7 OH. मतलब सी हियर हमने यहाँ पे क्या नोटिस कर दिया? देखो इन दिस सीरीज हम लोगों ने क्या मेंशन कर दिया कि सीरीज ये उनका जनरल फॉर्मूला था. सबका जनरल, इसका जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n plus 1 and OH. हमने खाली n का वैल्यू ले लिया. जब हम लोगों ने n1 ले लिया तो यहाँ पे क्या मिला? C1. लेकिन 1 हम लोग नहीं लिखते. C1 2 into 1 2 into 1 2 plus 1 3 तो CH3 बना. और आगे OH हम लोगों ने as it is लिखा. And the name of the compound is what? Methyl. And OH is called as the alcohol. अगर हमारे पास OH रहेगा तो हमसे क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोलेंगे. अभी n इक्वल टू 2 लिखा तो यहाँ पे C2 2 2 4 plus 1 तो C2H5OH and C2H5OH is called as ethyl alcohol. It is called as ethyl alcohol. n इक्वल टू 3 लिखा तो C3 यहाँ पे 3 2 already 2 है 2 3 6 plus 1 7 तो H7OH and this is called as a propyl अल्कोहल. तो अभी देखोगे यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n plus 1 OH. इथाइल अल्कोहल भी कौन से फॉर्मूला से बना? CnH2n plus 1 OH. और प्रोपाइल अल्कोहल भी कौन से फॉर्मूला से बना? CnH2n plus OH. मतलब a series of organic compound containing characteristic functional group. मतलब देखो इसका फंक्शनल ग्रुप भी OH है मतलब अल्कोहल, इसका फंक्शनल ग्रुप भी OH है अल्कोहल, और इसका फंक्शनल ग्रुप भी OH है अल्कोहल. देखो इन तीनों का जनरल फॉर्मूला सेम है, तीनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है. सो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक सीरीज बना मिथाइल इथाइल प्रोपाइल.
इस सीरीज बना, इस सीरीज में सबका जनरल फॉर्मूला सेम है, सबका फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, करेक्ट. सो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ईच कंटेनिंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है, एंड successive member differ from each other in a molecule by which group? CH2. CH2 group is called as what? Methylene. मतलब अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस देखो, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे 1 कार्बन एटम है, 2 कार्बन 1 कार्बन, तो डिफरेंस कितना आएगा? 1 कार्बन. यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 5 - 3 तो कितना आएगा? CH2. मतलब उनके बीच में डिफरेंस CH2 का आ रहा है. फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर डिफरेंस कितना आ रहा है? CH2 का आ रहा है. मतलब 2 मेंबर के बीच में डिफरेंस कितना रहेगा? CH2 रहेगा. अभी सेकंड और थर्ड में देखो, कार्बन 3 कार्बन 2, 3 - 2 1 कार्बन, हाइड्रोजन 7 - 5, 7 - 5 मतलब 2 हाइड्रोजन. तो 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स है या 2 सक्सेसिव मेंबर्स है, सक्सेसिव मेंबर में डिफरेंस कितना आएगा? CH2, एंड CH2 इज कॉल्ड एज व्हाट? मिथिलीन ग्रुप. तो 2 सक्सेसिव मेंबर में डिफरेंस कितना आएगा? हमेशा CH2 ग्रुप, एंड CH2 ग्रुप इज कॉल्ड एज मिथिलीन ग्रुप. क्या लिखोगे? यहाँ पे दोनों डैश, 2 डैश है, CH2 के लेफ्ट और CH2 के राइट साइड, बिकॉज कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 कम है, तो 2 हाइड्रोजन है, एंड 2 आर लेस, तो 3 and 4. यहाँ पे भी 2 डैश है, बिकॉज 2 हाइड्रोजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम आर लेस, तो यहाँ पे डैश है. मिथिलीन ग्रुप. दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द मिथिलीन. तो रिमेंबर दैट हियर. सी व्हाट इज द डेफिनेशन? all the member of the series all the member of the series has a characteristic functional group. The सबका functional group same रहेगा, correct. Second, successive member of the series, successive मतलब immediate, first and second differ by which group? CH2. Second and third differ by which group? CH2, and CH2 group is called as what? Methylene group. So successive member differ from each other in a molecular formula by CH2, that is methylene group, are called as the homologous series. Okay, we'll take one more example. Suppose we take the general formula CN H2N plus 1 and X. CN H2N plus 1 and X, the general formula. Now if I'll take here N equal to 1, if I'll write here N equal to 1, अगर मैंने यहाँ पे N कार्बन 1 लिखा तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 into 1, 2 into 1 2 plus 1 3, तो क्या बनेगा? CH3. एंड X मतलब हैलाइड, अगर हैलाइड मैंने क्या लिखा? Br. X मतलब हैलाइड, एंड हैलाइड आई एम राइटिंग हियर एज व्हाट? Br. तो ये कंपाउंड कौन सा बना हमारा? फिर मिथाइल ब्रोमाइड. ये कंपाउंड कौन सा बना हमारा? मिथाइल ब्रोमाइड. सेकेंड, N equal to 2, कार्बन 2, कार्बन 2, हाइड्रोजन N2 है, तो 2 2 is 4 plus 1 5, C2H5 Br, and C2H5 Br is called as ethyl bromide. And we'll take one more. C3 H7, देखो C3 N equal to 3 लिखा, N3 C3 2N, 3 2 is 6 plus 1 7, C3H7, और X की जगह लिखा Br, तो क्या बनेगा? प्रोपाइल तो सारे मेंबर का फंक्शनल ग्रुप सेम आ रहा है, Br Br Br. सबका जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है? CnH2n plus 1x. इसका भी जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है? CnH2n plus 1x, CnH2n plus 1x, CnH2n plus x. तो सबका जनरल फॉर्मूला सेम है, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है, और 2 कंसेक्यूटिव मेंबर में डिफरेंस देखो आप, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड एंड थर्ड. डिफरेंस देखो, यहाँ पे 2 कार्बन आइटम है, यहाँ पे 1 कार्बन आइटम है, 2 - 1 1 कार्बन, हाइड्रोजन 5 and 3, 5 - 3 2, CH2, लेकिन 2 डैश, because carbon valence is 4 and already 2 hydrogens are there, 2 more required, so 2 here.
carbon 3 minus 2, 1 carbon. Hydrogen 7 minus 5, 2 hydrogen. And then 2 hydrogen, 2 more required, 2 more. And this group is called as YL methylene group. Methylene group. This group is called as a methylene group, correct? So now we'll write, so you have seen homologous series, now we'll write down the characteristics of homologous series. Characteristics of homologous series. What is the first characteristic? The member of the series. The member of series are called homologs. The member of the series are called as a homologs. Okay, the first thing we are just going for the heading, characteristics of the homologous series. Characteristic, what is characteristic? The first one, the member of the series are called as homologs. Member of the series are called as a homolog. मतलब यहाँ पे ये हमारा series है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल. तो ये मिथाइल मतलब ये मेंबर है, तो मेंबर ऑफ द सीरीज मतलब होमोलॉग. तो ये हमारा सीरीज का फर्स्ट होमोलॉग, ये हमारे सीरीज का सेकंड होमोलॉग, ये हमारे सीरीज का थर्ड होमोलॉग. तो मेंबर ऑफ द सीरीज आर कॉल्ड एज अ होमोलॉग. यहाँ पे देखो मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड. तो एवरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ होमोलॉग. तो मिथाइल ब्रोमाइड इज अ वन होमोलॉग, ethyl bromide is a second homolog, and propyl bromide is a third homolog. So member of the series are called as a homolog. Then all homologs can be represented by the same general formula. सबका जनरल फॉर्मूला सेम है. देखो इसका फॉर्मूला भी क्या था, CnH2n plus ONH. इसका जनरल फॉर्मूला भी क्या था, CnH2n plus 1 OH. और ये भी फॉर्मूला कैसे बनाया था हम लोगों ने, CnH2n plus 1 OH. So the member homologs can be represented by the same general formula. the सारे homologs का जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा. Then homologs have the same functional group. सबका functional group सेम है. देखो अगर मैंने बोला कि ये अल्कोहल है, तो ये सबका functional group OH OH OH. अगर ये हमारे हैलाइड है, या अगर हमारा हैलाइड है तो Br Br Br. सबका functional group सेम रहेगा. So homologs have the same functional group. Then two successive member differ in the molecular formula. Which group? CH2 group. CH2 group is called as the methylene group, and that is called as how many units? 14 units. कैसे है 14 units? देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 and hydrogen 2 into hydrogen का एटॉमिक नंबर 1. तो एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 into 2, तो दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट? 14 यूनिट्स. मतलब दो सक्सेसिव मेंबर में डिफरेंस कितना रहेगा? दो सक्सेसिव मेंबर में डिफरेंस कितना रहेगा? CH2 ग्रुप का. CH2 ग्रुप मतलब कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 into 2, so 12 plus 2 14 यूनिट्स. so दो कंसेक्यूटिव मेंबर डिफरेंस कितना रहेगा? 14 यूनिट्स का. मतलब दो मेंबर में डिफरेंस रहेगा CH2 का. CH2 मतलब कितने यूनिट्स? 14 यूनिट्स का रहेगा. देन all homologs show similar chemical properties. मतलब ये अगर ऐसे अल्कोहल के अगर किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये भी सेम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, और ये भी सेम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा. मतलब दे ऑल विल शो द
similar chemical properties. All homologs will show the similar chemical properties. So here homologs have the similar chemical properties. Next, homologs shows gradation in properties such as melting point and boiling. Gradation in the property means what? अगर मैंने बोला कि मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा 40 डिग्री, इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा 50 डिग्री. मतलब बॉइलिंग पॉइंट, दे ऑल हैव द बॉइलिंग पॉइंट, बट बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन इंक्रीजिंग. अगर मैंने बोला इसका बॉइलिंग पॉइंट है 60, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा 70, इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा 80. अगर ये हैलाइड है, इसका बॉइलिंग, अगर पूरा बॉइलिंग पॉइंट है 50, तो ये आएगा 60 और ये आएगा 60. मतलब इनके होमोलॉग शोज ग्रेडेशन, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, दे गोज ऑन इंक्रीजिंग और दे गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो होमोलॉग शोज gradation in the properties such as melting point and boiling point. And homologs can be prepared by what? Similar method. मतलब इनका प्रिपरेशन मेथड सेम रहेगा. मतलब अगर मुझे मिथाइल अल्कोहल बनाना है, तो जिस तरह से मैं मिथाइल अल्कोहल बनाऊंगा उसी तरह मुझे क्या बनाना पड़ेगा? इथाइल अल्कोहल. उसी तरह मुझे क्या बनाना पड़ेगा? प्रोपाइल अल्कोहल. सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल आर गोइंग टू बी द सेम. अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड्स कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे. करेक्ट. तो ये हमारे होमोलॉग्स के प्रॉपर्टीज है. एक बार वापस देखो. All the member of the series are called as homologs. Homologs can be represented by the same general formula. Homologs have the same functional group. The successive member of the differ by the formula CH2 group, that is by 14 units. Homolog shows the similar chemical properties, and homolog shows the gradation in the properties such as melting point and boiling point, and homologs can be prepared by similar chemical method. So today we have done with the two topic. One is a classification of organic compound based on the functional group, और सेकेंड हम लोगों ने देखा होमोलॉगस सीरीज. सेकेंड हमने क्या देखा? होमोलॉगस सीरीज. सो व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? all the member of the series are having the same general formula and are having the same functional group. I will just summarize here. What is homologous series? All members have same general formula. All members have the same general formula. All members have the same functional group, and the two successive members differ by CH2 group. तो ये हमारा summary है. So what is homologous series? All members of the series have the same general formula. All members of the series have the same functional group, and the two successive members differ by which group? CH2 group. तो ये हमारे homologous series था. तो homologous series का definition देखा, homologous series का example देखा, and homologous series के characteristic देखा. Okay. So we'll stop it over here, and remaining part we'll do it in the next lecture.